थैंक यू संतोष। रोजा रखने के बावजूद आज लगभग कोई 1.25 घंटे बोलने के बाद का नतीजा ये है कि बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ये मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि 2018 के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ। उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है, जो मुझे अभी ही इसका ख्याल आया, कि कम से कम जम्मू कश्मीर में ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने फाइनेंस मिनिस्टर की सूरत में बजट पेश किया। कोशिश हमारी तरफ से हुई कि बजट वो पेश हो जिससे लोगों को फायदा मिले, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आए और जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर जो है वो और तेजी से आगे बढ़े। ये हमारा कभी दावा नहीं था कि सारा कुछ एक ही बजट में होगा। ना हमारा ये दावा था कि हमारे इलेक्शन में किए हुए वादे सारे एक ही बजट में पूरे होंगे। तो इसलिए मैं यहां बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ अब हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हमने बुनियाद रखी है। बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर जो दायरा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो मजबूत होगा। अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो आप उन बुनियादों पर कायम करने की कोशिश करोगे वो रहेगा नहीं। और कहीं पर भी, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जब ख्याल रखना है तो सबसे पहले ख्याल उनका रखा जाता है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए सोच समझ के इस बजट में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जिन वेलफेयर मेजर्स का आज ऐलान हुआ, वो जम्मू कश्मीर की सबसे गरीब जो तबका है उनके लिए है। ये बुनियाद है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे और हमारी माली हालत बेहतर होती जाएगी, जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हमें लेने होंगे उनका दायरा जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी जगह मुतमैन हूं कि जिन हालात में आज जम्मू कश्मीर है, फाइनेंशियली और एक यूटी की सूरत में, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। और मेरी और मेरे साथियों की, हमारी हुकूमत की लगातार कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर फायदा हासिल हो। तो ये कहते हुए मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन साहब से कह दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। Thank you, sir. Before opening the floor for the questions, I request all the media persons to kindly introduce yourself and the organization you belong to before asking a question. Also, please keep your questions brief and kindly limit yourself to one question. So, now I open the floor for questions. So, from here, start.
I didn't hear you. You're putting more emphasis on? Sir, you are putting more premium on what? Agri-economy or crops economy or creating assets in the form of industrial units in your major budget? What is your focus? Agri-economy, crops. Oh, okay. No, our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides. The primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. Question from them. So I am Anil Bhatt from PTI. Mursa, you have showcased a lot more programs in your budget. One important factor that we generally talk about is the agriculture or tourism-based economy of J&K. But never has the focus gone to the hydropower, which is the biggest economy in terms of, in fact, it can be 20,000 crores economy for J&K. You have spelled the new hydropower policy for this thing. Can you specific about the projects, particularly private projects? Actually, in my budget speech, I said that we are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the Power Department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well. So that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. Next. हेलो, वो सब विनोद बोल रहा हूँ, मैं गुलिस्तान न्यूज चैनल से। नमस्कार। मैं बजट एक्ट लास्ट पढ़ रहा था, उसको देख करके मुझे लगा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 19% है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? फ्रीबी या फिर सोशल सिक्योरिटी? एक सवाल ये मेरा। दूसरा, आपका जो सैलरी कंपोनेंट है, वो इस साल कम रखा गया है और पेंशन कंपोनेंट भी कम है। जब सैलरी कंपोनेंट आप कम रखते हैं, इसका मतलब है कि आप रोजगार, सरकारी नौकरी इस साल नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और मतलब एक सवाल मैं लास्ट में आपसे करना चाहूंगा, लास्ट में एक मौका मुझे दे दीजिएगा। ये दो सवाल मेरे। चलिए, अब पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा आरई है, वो 27,544 है। जो हमारा 25-26 का बीई है, बजटेड, ये है 32,607। तो इसको बढ़ाने की बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है। वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है, वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के
मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट में डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है इस बार। इस बार जो सैलरी कंपोनेंट है वो कम हो गया। मैंने कहा कि सैलरी कंपोनेंट कम हो गया है। आप कह रहे हैं कि पिछले साल था 27,930 करोड़, अभी आपने जो प्रपोज किया है 23,896 करोड़ है। इट मीन्स कि आप रोजगार नहीं देने वाले हैं या असामियां जो खाली है वो नहीं भरने वाले। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना। पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी। इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है। एम्प्लॉइज की तादाद कम नहीं हुई है, एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है। Next question, please. गुड इवनिंग सर, रोहित शर्मा टेक वन चैनल से। सर डेली वेजेस के लिए मैं पूछना चाहूँगा, उनका बड़ा लंबे समय से इंतजार था। दरअसल जब यहाँ से बाहर जाएंगे वो हमें पूछेंगे जब हम कल उनके प्रोटेस्ट में उनकी कवरेज करेंगे एसपी उसको लेकर। पिछले दिनों आपके एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी डाली जिसको क्लैरिफिकेशन दी गई, लेकिन सवाल उनका जो है वो आप तक पहुँचाने के लिए वो हमें मेडिटेशन चूज करते हैं। क्या कुछ उनके लिए निकल कर आ रहा है? सर एडिशन करूंगा AA वाइज के लिए जो आपने बजट लाया है, नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, बट डोंट यू थिंक सर कि BPLs का जो पैरामीटर सेट किया गया है उनको एक बार फिर से सर्वे करने की जरूरत है ताकि जो APLs में आज की डेट में फॉल कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब जहां तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए एक पॉलिसी हमें बनानी होगी। पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है, कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं। जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जहां तक आपने AAY और BPL वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। तो इस बजट में सोच समझ के हमने AAY को जो है मदद की। अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे उससे हमारी कमाई बढ़ेगी, और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी, उसमें फिर हम जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा। Next from that side, please. You can have from this side. सर इधर करो सर, जानबूझ के ढूंढ के अलग अलग बंदों को दे रहे। गुड इवनिंग सर। सर मेरा दो छोटे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि क्या सरकार NPS एम्प्लॉइज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है रेस्टोर करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने अपने बजट में काफ़ी वेलफेयर मेजर जो अनाउंस किए हैं, क्या जो एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनके लिए भी कोई वेलफेयर मेजर अनाउंस करेगी सरकार, जस्ट लाइक पेंशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि। न्यू पेंशन स्कीम का जो पुराने वाले हैं वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम पे हैं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन्स वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूँ हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए कितना चाहते हो। वहां से एक क्वेश्चन। फिलहाल प्रेस क्लब की मैंने बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। What's up, good evening. Hakeem Irfan from Economic Times. What's up, you have this
fare rebate for the women. You said zero fare for the women. So we see that the public transport, especially the SRTC, is in shambles, especially when we talk about districts, inter-district connectivity and all. So will it reach to the grassroots really, number one? And number two, the opposition has termed this budget as something which is a love letter to the BJP. Some have called it the deception because of the broken promises of the elections. How do you respond to that? And lastly, also I say you started your budget speech in a very pessimist Persian proverb, which is often used when the situation is irreparable. So, do you still consider what you told in Delhi recently, that it's the current system is a recipe for disaster? Do you still did you see that challenge while preparing the budgets? Yeah, we've had so many questions that I don't know where to start. One, SRTC's network. So obviously, ladies, when they're able to travel free, both within the e-bus network and SRTC, we believe that it will benefit them greatly.